پیسہ آ جائے تم نے بے عزتی کر دی سنبل کی. اس کی وجہ سے مجھے میرا یا تو مرنا ہی بہتر ہے. میں کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے. انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو آگے پہنچتی ہے. انسان ترقی کے لیے نہ جانے کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکے، بلندی پر پہنچ سکے، بلندیوں تک جا سکے. اپنی منزل اور منزل مقصود کی تلاش میں انسان کو طرح طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے. اللہ اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود کو پا سکے اور منزل مقصود پر پہنچ سکے. منزل ہر انسان کی اپنی الگ ایک منزل ہوتی ہے. ہر انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے. اپنے اختیار، اپنی سوچ و فکر اور اپنے تجربات کی روشنی میں انسان اپنی منزل، اپنا مقصد متعین کرتا ہے اور اس کی تلاش میں، جستجو میں، اس کی چھان بین میں، اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکے اور جو اس کا مقصد ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا بھی ایک لوگوں کا اہم مقصد بن گیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے، سوشل میڈیا پر ترقی کرے، سوشل میڈیا پر بہت آگے تک پہنچے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی معاشی کمزوری کو طاقت میں بدلے اور اپنی معاشی حالات کو درست کرے. اس کے لیے انسان بہت ساری شکلیں اختیار کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور کڑی محنت کے بعد وہ اس قابل ہو پاتے ہیں کہ اس میں کچھ آگے بڑھ سکے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی کوشش، ایک معمولی سی گفتگو، ایک معمولی سی بات جب ان کی زبان سے نکلتی ہے تو اللہ اسے پر عطا کر دیتا ہے اور ان پروں کے ذریعے پوری دنیا میں آنن فانن میں پہنچ جاتی ہے اور انسان کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی گھنٹوں میں بہت مشہور ہو جاتا ہے اور شہرت کی اور عزت کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ انسان کی عقل مندی اور سمجھداری یہ ہے کہ بلندی پر نہ پہنچے بلکہ بلندی پر پہنچنے کے بعد بلندی پر ٹھہرے. بلندیوں پر پہنچنا کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. اسی تعلق کی ایک خبر ابھی ہمارے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں، صاحب ریش ہیں، سادے سے مزاج کے حامل ہیں، ایک دیہات کے رہنے والے ہیں. انہوں نے ایک چٹکلا کہہ لیجئے، ایک لطیفہ کہہ لیجئے، طنز و مزاح کی گفتگو کی اور بڑی تیزی سے وائرل ہوئی ان کی ویڈیو اور وہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا میں ترقی کر گئے اور بہت آگے پہنچ گئے. آپ جانتے ہیں، ہم انہیں اور ہمارے بھائی انہیں اوم فو چاچا کے نام سے جانتے ہیں، جن کی ایک عام سی ویڈیو ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک پھرکی ہوتی ہے اور وہ اس کو گھماتے رہتے ہیں، تیزی سے چلاتے رہتے ہیں اور اس طرح گفتگو کرتے رہتے ہیں. دھراٹے کاٹ رہی ہے اوم فو چاچا کے نام سے وہ مشہور ہو گئے اور بڑی تیزی سے مشہور ہوئے اور بڑی تیزی سے آگے پہنچے. لیکن جتنی تیزی سے وہ آگے پہنچے تھے، جتنی تیزی سے وہ اوپر گئے تھے، جتنی جلدی انہوں نے ترقی کی تھی، اتنی ہی جلدی ان کی ترقی رک گئی. ان کی ترقی میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ اڑتے اڑتے ان کے پروں میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ گر گئے یا گرنے کے قریب ہو گئے اور انہوں نے روتے ہوئے سوشل میڈیا کو الوداع کہا اور اس سے دوری اختیار کر لی. آخر کیا وجہ ہے کہ جنہیں ایک ترقی مل رہی تھی، خوشحالی کی طرف ان کے قدم بڑھتے جا رہے تھے، لوگ انہیں سنتے تھے، خوش ہوتے تھے، تفریح حاصل کرتے تھے، ان کی ویڈیو کو بڑے اہتمام سے لوگ اپنی ریکارڈنگ میں چلاتے تھے، مختلف سوشل میڈیا پر، مختلف چینلوں پر ان کی ویڈیو ایکٹیو نظر آتی تھی. تو آخر کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی، ہم انہیں کی زبانی جانتے ہیں. پہلے آپ دیکھیے چاچا کون ہیں اور کس طرح سے ان کی ویڈیو وائرل ہوتی تھی اور وہ کیسے ترقی کر گئے. یہ ہے بھیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، 2 کی ملے گی ننی، اس سے بڑی 4 کی، اس سے بڑی 5 کی، اس سے بڑی 10 کی. آج ہی آج موقع تڑالا 100 کا، میں دیا اپنی بڑھیا کو دھوکا. کرنی پڑے بھیا بات ہے، نہ بچے دھورے نہ آتے، پھر بڑھیا کہے تم نہ کماتے. وہ تو بڑھیا کو رکھوں راجی، جب ملے روٹی تازی، ذرا سی ہو جائے ناراضی تو کھانی پڑ جا باسی. مطلب یہ شاعریاں کہاں سے لے کر آئے ہیں آپ ایسی؟ بس بیچتے میں ہو گئی ہے اس کی پرسٹک، اور کیا. اچھا، اور تو مطلب بڑھیا اور روٹی سب مطلب ایک میں ہی جوڑ دیں گے آپ؟ ہاں، سب ایک میں ہی جوڑ دیتا ہوں میں. اچھا، کچھ نیا سنائیے نا اس کے ذریعے. نیا پرانا کیا رکھا، آپ کیا سناوے نئی پرانی. اچھا، ہاں،
कुछ और? माल मिलेगा पेवर, चलावे भाभी तो रोवे देवर। जल्दी आ जाओ दौड़ के, पैसे ले आओ, गुल्लक फोड़ के भजे चले आओ, चप्पल छोड़ के नंगे पैर। हाँ, अब ये भी देखिए कि हमारे चाचा सोशल मीडिया से क्यों दूर हुए। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जो वीडियो इनकी सोशल मीडिया से दूरी का कारण बनी, जिसने इनकी जिंदगी को जो तरक्की की तरफ बढ़ रही थी अचानक रोक दिया। इनकी जिंदगी को जो बड़ी तेजी से बुलंदियों को छू रही थी अचानक ऊपर से नीचे गिरा दिया। आखिर क्या वजह हुई? वजूहात बहुत सारी हैं। अब पहले उनकी ज़बानी सुनिए कि उन्होंने क्यों अलविदा कहा, फिर आखिर में हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसके जरिए से उन्होंने सोशल मीडिया को अलविदा कहा और वो इससे दूर हो गए, इससे दूरी इख्तियार कर ली। पैसा आ जा, तुमने बेइज्जती कर दी संभल की। इसकी वजह से मुझे, मेरा या तो मरना ही बेहतर है। मैं कुछ मेरे साथ वाकया ये हुआ है कि सब काम सियासत से हुआ है और मेरी गलती से हुआ है, उस्मान भाई की गलती से हुआ है। अब उस्मान भाई कहे मेरी गलती ना है, मैं कहूँ मेरी गलती ना है, ये नामुमकिन है। ये बात ये कहनी ना चाहिए हमें दोनों को। अब जो हुआ वो हुआ। अब ये है, अल्लाह करे मुझे माफ़ कर दे परवरदिगार, मैं तो इस काम को करूँगा ना। वो वीडियो ये थी, हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी रुकी हुई भी थी, गाड़ी रुक गई। तो इससे पहले, हाँ जाने से पहले ये भी हुआ था कि भाई आपस में तो मजाक चले ही है, 4 पहिया गाड़ी से जा रहे थे। उसमें उस्मान भाई भी थे, मैं भी था और साथी थे, ड्राइवर भी थे, 2 लड़कियाँ थीं, 2 साज बजाने वाले थे, हम सारे के सारे थे। आपस में दंगा करते हुए भी जा रहे थे। गाना आपस में भी उन्होंने पहले करा, फिर बाद में मैं बैठा था। जब भी हुआ है, मुझसे भी गलती हो गई है। गाड़ी का वो हुआ, स्टपनी निकल गई, वो पंचर हो गया, उन्होंने स्टपनी बदली, तो वहाँ मैंने भी कुछ करा, मुझसे भी गलती हुई है, उनसे भी हुई है। अब ये उस्मान भाई के साथ तो काम बिल्कुल करना ही ना मुझे। अब साथी जो है मेरे जमात के, जो वो सारे मुझे बुलाया था उन्होंने, वो मैं गया था उनसे, मैंने कहा भाई ये बताओ आज हमारे यहाँ जोड़ है, क्या खर्चा आएगा 1 देख में, 2 दे के पकेंगी। तो बोले यहाँ कुछ जोड़ वोड़ ना होने का, और तुम मरकस भी मत आना, और जमात बदनाम होगी, अल्लाह वाले बदनाम होंगे, तुम जमात के काबिल ना हो। और मरकज़ में भी 2-3 जने गए हैं रोते हुए कि भाई हमारा साथी तुमने उसे छोड़ दिया, उसके साथ में ऐसा आ रहा, उसे बुलाना रहे, उससे काम न करा रहे, ऐसा हुआ। उसकी वजह से मेरा दिल जो है वो दुखा है बहुत ज़्यादा। गलती मुझसे ही हुई है, जाना नहीं था मुझे उस्मान भाई के यहाँ, मुझे बनानी ना थी ये काम करने के लिए, जाना नहीं था कि गलती हुई है मुझसे। मैंने तो उंगली भी ना लगाई, मैंने तो हाथ भी ना लगाया। अब लड़का भी खिलाफ है, घरवाली का है, और कोई कुंवारी लड़की देख के कर लो। लड़का जो ऊपर छत पे चला वो तराई करने के लिए, उसने वहाँ से डिब्बा लोटा फेंक दिया। मैंने कहा अरे तू सुन क्यों ना रहा, अगर टूट जाएगा, ऐसे क्यों कर रहा। तो वो बोला ही ना गुस्से के मारे। लड़की ने मुझे आज फजर की नमाज वहाँ शेख पसरा में पढ़ी मैंने संभल जाके, तो वो उन्होंने सारी बातें पूछी हमारे दामाद ने, वो लड़की भी रोने लगी बड़ी वाली। तो बोले ऐसा कुछ ना है, कोई ऐसी बात ना है, गलती इंसान से हो ही जाए। उन्होंने समझा दिया मुझे। छोटे दामाद जो मुझसे बोल रहा है वो नाराज़ हो गए। ये लोगों ने मुझसे, अब तो मेरा निकलना भारी पड़ रहा है, मेरा निकलना भी, मुझे सूरत दिखाना, बाहर को निकलना बड़ा मुजिर हो रहा, बड़ा भारी हो रहा, सूरत दिखाना भारी हो रहा है। और मैं निकलना, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही, डर लग रहा। आज जुम्मे का दिन है, ये कह रहे हैं जाओ नमाज पढ़ियो, रोना ही आ रहा। मैं करूँगा क्या? किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा ये क्या हुआ, लड़कियों ने तुम्हारे, कह रहे हैं लोग चुम्मा ले रहे हैं, यूँ हो रहा है, और गाना बना रहा हो, अब तुम ये कर रहा हो, तुम तो जमात का आदमी थे, तुमने संभल का नाम उठाया था, तुम बहुत गलत आदमी निकले, तुम बहकाए में आ गए उनके, और पैसे की वजह से कर रहा हो या काम की वजह से कर रहा हो कि पैसा आ जा, तुमने बेइज्जती कर दी संभल की। इसकी वजह से मुझे, मेरा या तो मरना ही बेहतर है। मैं कुछ एक बात मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया एक माया जाल है। उससे निकलने के लिए, उससे बचने के लिए इंसान को हर वक्त
चाको चौबंद रहना पड़ता है, चुस्त फुर्त रहना पड़ता है। जहां जरा सी लफ्जिश हुई और उसको जाल में फंसाया गया, जहां जरा सी कोताही हुई, जहां जरा से उसने अपने हिफाजती इंतजामात कम किए और फौरी तौर से उसको उचक लिया जाता है और फिर उसे टॉर्चर किया जाता है और उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो इस गंदी जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट की दुनिया बहुत वसी है। अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया इस्लाम की तरक्की का जरिया बन सकती है। इसके जरिए से इस्लाम के पैगामात को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। ये दावत का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाने के लिए बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन स्टेज है, बेहतरीन डाइज है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि हम पहले अपने जहनो दिमाग में, अपनी सोचो फिक्र के अंदर इस्लाह पैदा करें, अपनी सोचो फिक्र को मुनज़्ज़म करें, मुत्तहिद करें, जहनो दिमाग की गंदगी को, फसाद को दूर करें और फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया में कदम रखें और इसको नफे के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन आजकल ये माया जाल बन गया है, इसमें आदमी अच्छाइयों की तलाश नहीं करता बल्कि बड़ी तेजी से बुराइयों की तरफ बह पड़ता है। इसीलिए जरूरी होता है कि आदमी इस नेटवर्क की दुनिया को, इंटरनेट की दुनिया को, सोशल मीडिया की दुनिया को इख्तियार करने से पहले बहुत ज्यादा चाको चौबंद रहे, चौकन्ना रहे, चुस्त फुर्त रहे। कहीं ऐसा ना हो दूसरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें उचकने के लिए मुंतजिर हैं, उन्हें छीनना चाहते हैं, उन्हें समाज से दूर कर देना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को खिलवाड़ बना देना चाहते हैं और उन्हें टॉर्चर करना चाहते हैं, जहनी तौर से उन्हें परेशान करना चाहते हैं। और बहुत से लोग इसलिए मुनज़्ज़म हैं, इसलिए मुत्तहिद हैं सोशल मीडिया पर कि वो साफ सुथरे जहन के लोग, कम समझ लोगों को, सीधे साधे लोगों को निशाना बना सके और फिर उनसे रकमें ऐंठ सके। इस तरह खबरें बहुत सारी सुनने में आती रहती है। इस तरीके से मेरे जितने पैसे ले लिए गए, मुझे बेवकूफ बना दिया गया, और उनकी बहुत सारी शक्लें होती हैं, बड़ी उनकी तेज चालें होती हैं, उनके फरेब बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। वही आदमी बच सकता है जो अपने जहनो दिमाग को साफ रखे और अपने दिल को पाकीज़ा रखे और सोशल मीडिया को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करे। जहां एक बटन दबाया और जहां जरा सा वो आगे घुसा, फिर वो इतनी दूर चला जाता है कि उससे वापसी मुश्किल हो जाती है। इसलिए इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे ओमपुर चाचा के साथ भी ऐसा ही हुआ कि इन्होंने जब देखा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, शायद अपने माजी को भूल गए, इन्होंने अपनी पिछली जिंदगी को भुला दिया और ये समझ बैठे कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूं। यहीं से शैतान इंसान का शिकार करता है, उसके अंदर तकब्बुर, उज्ब, बड़ाई पैदा कर देता है और फिर यहीं से इंसान की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। याद रखिए, अगर पैसा, रुपया, तरक्की के बाद इंसान की बोलचाल, रहन सहन, चाल ढाल में तब्दीली आ जाए, उसके अखलाक तबाह हो जाए, उसके अखलाक बदल जाए, दोस्तों से मुलाकात में उसकी जबान से नाजिब अल्फाज निकलने लगे, तो समझ लीजिए कि उसकी तरक्की के दिन गिने जा चुके। अब वो तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। कभी कभी रोशनी भी तनज़्ज़ुली का सबब बन जाती है और कभी कभी अंधेरा भी इंसान को आगे पहुंचाने के लिए बहुत काफी होता है। इसको एक शायर यूं कहता है, वो अंधेरा ही भला था जिससे हम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। और जिसको यूं कह लीजिए कि जब तक इंसान रात को उठकर अंधेरे में, तारीकी में अल्लाह ताला के सामने नहीं गिड़गिड़ाता तो उसकी तरक्की मुतय्यन नहीं की जाती है। दुआए नीम शबी ही इंसान की तरक्की का बेहतरीन जरिया होती है। तो पता चला हर जगह पर रोशनी तरक्की की दलील नहीं और हर जगह पर अंधेरा, तारीकी, तनज़्ज़ुली और बुज़दिली और पीछे की तरफ जाने की अलामत नहीं होती है। हमें सोचना पड़ता है कि क्या चीज तरक्की का जरिया बन रही है और क्या चीज तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाने वाली है। अब सबक हासिल कीजिए इन चाचा से, इनकी जिंदगी को देखिए, कितनी तेजी से आगे बढ़ी थी, कितनी तेजी से रोशनी की तरफ जा रही थी और कितनी तेजी से तरक्की करते जा रहे थे। लेकिन शायद इन्हें मालूम नहीं था कि मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास, मेरे दोस्तों में, मेरे चाहने वालों में मेरे दुश्मन भी हैं, हासिदीन भी हैं, जो एक मौके के मुंतजिर हैं। जहां जरा सा मौका मिला फौरी तौर से इन्हें उचक लिया गया और इनकी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली पैदा कर दी गई शायद वे सोच भी नहीं सकते थे। और फिर इन्हें
सोशल मीडिया से अलविदा कहना पड़ा, इससे दूरी इख्तियार करनी पड़ी और अपनी तरक्की को, जो तरक्की समझ रहे थे और तरक्की थी भी, उस तरक्की से अपनी उसी तनज़्ज़ुली और पुरानी जिंदगी की तरफ लौटना पड़ा और उन्हें रोना पड़ा अपने दोस्तों से। अगरचे उन्हें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें रोना पड़ा और अपनी तरक्की पर, जिसको तरक्की समझ रहे थे, उन्हें अपनी जबान से कहना पड़ा कि ये तरक्की नहीं थी, बल्कि तरक्की के नाम पर एक धोखा था, एक फरेब था और एक जाल था जिसमें मुझे फंसाया गया, जिसके जरिए मुझे धोखा दिया गया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी तरक्की, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी जो सादी थी, गुमनामी की थी, तन्हाई की थी, गोशा नशीनी की थी, मेरे लिए वही काफी है। आप भी सबक हासिल कीजिए, मैं भी इससे सबक हासिल करूं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज को हम तरक्की समझ रहे हैं वो तनज़्ज़ुली हो, जिस चीज को हम खुशहाली समझ रहे हैं वो बदहाली हो, जिस चीज को हम इज्जत समझ रहे हो बेइज्जती का जरिया हो, जिस चीज को हम समझ रहे हैं कि हमारा इकराम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इकराम की शक्ल में हमारी जिल्लत और रुसवाई के ताने बाने बुने जा रहे हों। इसलिए चाको चौबंद रहे, होशो हवाश को बाकी रखे, अपने जहनो दिमाग, अपने कल्ब जिगर को अपने साथ रखिए और कभी भी तकब्बुर में ना आइए, बड़ाई से दूर रहिए। बड़ाई तो सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। जो भी अपने आप को बड़ा समझता है तो अल्लाह उसे उसका सबक जरूर देता है, आज नहीं तो कल उसको वो सबक मिलकर रहेगा। हमें इस वीडियो से सीखना चाहिए। अब वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओमफो चाचा जो संभल के रहने वाले थे, उनकी जिंदगी में एक भूचाल पैदा करने का जरिया बनी और जिस वीडियो की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया से अलविदा कहा और सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार की। आप भी ये वीडियो को देखिए और दूर रहिए इन फरेब दे चीजों से, इन धोखे देने वाली चीजों से। ये सिर्फ धोखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जाहिर अगरचे बड़ा खूबसूरत है, बड़ा दिलनशी है, बड़ा दीदा ज़ेब है, बड़ा दिलकश है, लेकिन अंदर धोखा फरेब के अलावा कुछ नहीं है। आपको डसने के लिए मुंतजिर हैं बहुत से लोग, उनसे अपने आप को बचाइए और अपनी इज्जत, समाज में अपनी हैसियत, घर में अपनी कद्र मंजिलत को बचाइए, वरना फिर कुछ नहीं होगा। आप रोएंगे, अफसोस करेंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और इस शेर को भी अपने जहन में रखिए, जो शेर एक बड़े शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। काट रही है ओम को, ले भैया ओम को।